Coming from your previous lecture, that is जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था synchronous communication. So SPI and I2C, these are your most used serial communication and synchronous communication protocols जो हम लोग यहाँ पर use करते हैं. Alright, so first is your SPI. SPI का full form I think सब लोगों को पता है, but if you do not know, then you can look here, serial peripheral interface. Right? So obviously it is asynchronous क्योंकि यहाँ पर clock दोनों devices में common रहेगी. Another feature of this protocol is it is a full duplex communication. ये हम लोगों ने आपके digital communication में भी पढ़ा था. We can have simplex, half duplex and full duplex. In fact, SPI ही एक इस type का protocol है. I mean, it is one of those few protocols where you have full duplex communication when we are talking about digital devices. ठीक है, जैसे हम I2C पे देखेंगे, I2C में full duplex नहीं होता है. Alright, even आपका जो UART है, that can also be a full duplex. So remember, not all the high level or all the most prominently used protocols are full duplex. So this you should be able to decide कौन सा full duplex है, कौन सा simplex है, कौन सा half duplex है, right? So this is full duplex because आप same time पे इस device 1 से device 2 में transfer कर सकते हो and same time पे device 2 भी device 1 में data transfer कर सकते हो. ठीक है, it is optional. ऐसा नहीं है कि दोनों करेंगी, ये करेगी. बाई चांस अगर आपको सेकेंड से फर्स्ट में कुछ नहीं ट्रांसफर करवाना है तो या तो आप लाइन डिस्कनेक्ट कर दो या यहाँ पर गार्बेज डेटा आप भेज सकते हो. सो इट इज नॉट नेसेसरी दैट दिस नीड्स टू रिसीव समथिंग इन सेव्ड. अगर सिर्फ फर्स्ट डिवाइस को सेकेंड डिवाइस को कुछ भेजना है देन इट विल सिंपली सेंड. सेकेंड वाली डिवाइस इसका डेटा स्टोर करेगी और या तो मैं इस कनेक्शन को ही हटा दूं जिससे इसका डेटा यहाँ जाएगा, और अगर वो नहीं कर रहा हूँ so let it send some garbage data जो कि ये सिंपली डिस्कार्ड कर देगा. ये रिसीव करके इट विल नॉट सेव, इट विल डिस्कार्ड. ठीक है, सो फुल ड्यूप्लेक्स का डिजिटल डिवाइसेस में ये मतलब है that even though if you are receiving data you can discard. All right, this is a high speed communication. SPI की स्पीड काफी हाई होती है, therefore it is used for very high speed communication where you require your speed to be very high. And you can have only one master here. हम लोग अभी I2C में देखेंगे थोड़ा सा डिफरेंट होता है. We can have only one master device. अगर आपके पास multiple slaves है, only one of them at a given time can be allotted or can be designated as the master. बाकी अगर मुझे किसी और को master बनाना है then I'll have to change my programming. काफी मुझे अपने कोड में चेंजेस करने पड़ेंगे तभी मैं दूसरे डिवाइस को मास्टर बना सकता हूँ. ठीक है, सो आई कैन नॉट इजीली चेंज इट. अगर ये मेरी मास्टर डिवाइस है एंड ये मेरा स्लेव डिवाइस है, सो यू कैन सी हियर दिस इज अ बेसिक एसपीआई इंटरफेसिंग डायग्राम. ये मैंने दो माइक्रो कंट्रोलर्स ही यहाँ पे लिए. इन योर नेक्स्ट लेक्चर्स वी विल आल्सो सी हाउ यू कैन कनेक्ट योर microcontroller using SPI with other peripherals as well, other modules. ठीक है, maybe it is an accelerometer or it can be some sort of sensor or some high level module. ठीक है, तो वो भी हम लोग अभी देखेंगे. But here we are only considering initially a device that has SPI and another device that has SPI, kind of a microcontroller. ठीक है, so यहाँ पर आप चार चीजें देख रहे होंगे. So SPI is actually a 4-pin communication protocol. जैसे अभी हमने ऊपर जब हमने UART डिस्कस किया था then we saw it was simply a 2-pin protocol. 2 पिन से काम हो जाता है, बाकी आप और भी पिन यूज कर सकते हैं. हम लोगों ने DB9 पोर्ट को भी पढ़ा था and we saw there are other signals also you can use. बट अगर मैं कम्युनिकेशन की बात करूँ तो TXD और RXD 2 पिन से काम हो जाता है. और अगर आपको सिर्फ डेटा ट्रांसफर ही करवाना है मे बी एक डिवाइस से, उसको रिसीव भी नहीं करना है तो एक ही पिन से काम हो जाएगा.
but here we are going to use at least 3 or 4 pins. So let us go over these pins. So first is your MOSI. You can see this pin. So इसका बहुत ही सिंपल आपका फुल फॉर्म है, मास्टर आउट स्लेव इन. Now remember ये मेरा मास्टर डिवाइस है, ये मेरा स्लेव डिवाइस है. ओके, सो मास्टर आउट स्लेव इन मतलब मास्टर का आउट एंड स्लेव का इन. सिंपली इसको आप देखिए, इसका एब्रिविएशन क्या है, फुल फॉर्म खुद लिख सकते हो, एंड डायरेक्शन ऑल्सो आपको बनाना पड़ेगा. इस डायग्राम को रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. सिंपली ड्रॉ 2 बॉक्सेस, चारों पेन आ गई. अभी मैं और एक्सप्लेन कर रहा हूँ. मास्टर आउट स्लेव इन मतलब मास्टर आउट कर रहा है, स्लेव इन कर रहा है. ऑब्वियसली दैट मीन्स द डायरेक्शन विल बी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. सिंपल. देन वी हैव MISO, MISO. So again you can try to take out the full form from this abbreviation itself. आप देख सकते हो MISO यानी मास्टर इन स्लेव आउट. So master in हो रहा है और slave का out है. So obviously the direction will be from slave to master. इसलिए direction ऐसे है. ठीक है. So ये तो आपकी डेटा पिन्स हो गई, जैसे RxD TXD हमारा UART में था. But since this is a form of synchronous communication, we have another pin that is SCK. किसी डिवाइसेस में SCK होता है, किसी में SCLK होता है. But this pin actually is used for clock. So if you remember synchronous में दोनों के clocks also same होते हैं, common होते हैं. And since this is a master slave sort of communication, तो कौन सी device provide कर रही है clock? Your master. So that is why your direction is from master to slave. जो भी master की clock generate हुई, वही यही master SCK pin के through slave को clock provide कर. यानी ये कोई और clock use नहीं करेगा. It is going to use this clock only for your communication. ठीक है. फोर्थ पिन ऑप्शनल होती है, बट इट इज यूज्ड इन मेनी माइक्रो कंट्रोलर्स एंड इट इज यूज्ड इन डिफरेंट वेज. तो हम लोग MSP जब पढ़ेंगे वी विल सी हाउ वी यूज दिस. सो दिस इज काइंड ऑफ योर चिप सेलेक्ट और स्लेव सेलेक्ट. सो दिस पिन इज यूज्ड व्हेन यू आर वर्किंग विद मल्टीपल स्लेव्स. ठीक है. सपोज मेरे पास एक और स्लेव होता समवेयर हियर, उसमें भी हम MOSI और MISO ऐसे ही कनेक्ट करते, SCK भी ऐसे ही कनेक्ट करते. बट इसका जो स्लेव सेलेक्ट है SS, ये हम किसी और पिन के साथ कनेक्ट करते हैं. समथिंग लाइक दिस. ठीक है. सो स्लेव सेलेक्ट तभी आपका यूज हो रहा है जब आप एज अ स्लेव SPI प्रोटोकॉल में यूज कर रहे हो इस डिवाइस को. अगर मैं मास्टर की बात करूं तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट मास्टर यूजेस द CS और SS पिन होती. ये कोई भी अपनी इनपुट आउटपुट पिन यूज कर सकता है. दिस इज सिंपली अ सिलेक्शन पिन. मैं यहाँ पर सपोज अगर मैं आपको 8051 टाइप का एग्जांपल दूं, जो कि 8051 में SPI नहीं होता. जस्ट अज्यूम कि यहाँ पर दो पिन्स हैं, P2.0 और 2.1. तो मैं इस 2.0 को इससे कनेक्ट कर दूंगा जो मेरी सेकेंड डिवाइस है, एंड 2.1 को थर्ड डिवाइस से कनेक्ट कर दूंगा. किससे कनेक्ट करूंगा? इसके स्लेव सेलेक्ट से या चिप सेलेक्ट से. So 2.0 will be connected to this chip select and 2.1 will be connected to this chip select. अगर मेरे पास multiple devices. So chip select and slave select is used when that particular device is being used as a slave. तो यहाँ पर मुझे मास्टर में चिप सेलेक्ट या स्लेव सेलेक्ट यूज करने की जरूरत नहीं है. मैं कर सकता हूँ, मैं इसको इसके थ्रू कनेक्ट कर सकता हूँ जैसे हमने इस डायग्राम में किया है. बट अगर more than one slaves होगा then you will need more pins. So that is why use of this pin is optional. और काफी सारे माइक्रो कंट्रोलर्स में सॉफ्टवेयर कंट्रोल्ड भी रहता है, मीनिंग यू कैन एनेबल इट, डिसेबल इट डिपेंडिंग ऑन योर एप्लीकेशन. ठीक है. सो आई होप द इंटरफेसिंग ऑफ SPI इज कंप्लीटली क्लियर. ये तीन पिन्स बहुत इंपॉर्टेंट है. स्लेव सेलेक्ट इज फॉर selecting a particular slave and it is used when that particular device is being used in slave mode. मास्टर मोड में आपको ये चिप सेलेक्ट सिग्नल यूज करना जरूरी नहीं है. यू कैन
use some input output pins also. All right, so this is your SPI interface. जैसे यहाँ पर हम लोगों ने दो माइक्रो कंट्रोलर में किया है, इनफैक्ट इफ यू अंडरस्टूड दिस तो आप किसी भी डिवाइस के साथ कर सकते हो. यू कैन इवन यूज दिस कॉन्सेप्ट इन योर प्रोजेक्ट्स. 4 पिन ही है अल्टीमेटली, 4 पिन को आपको कनेक्ट करना है. अगेन फोर्थ इज ऑप्शन डिपेंडिंग ऑन योर एप्लीकेशन. सो आई होप एसपीआई सबको समझ में आ गया है, इसके फीचर्स आपको समझ में आ गए, इसके पिन्स समझ में आ गए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आर द डायरेक्शंस व्हिच यू शुड नो योरसेल्फ. जब आप एग्जाम में आप इजीली इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो. यू कैन आल्सो यूज दिस नॉलेज इन दीस कॉन्सेप्ट्स इन योर प्रोजेक्ट्स. ऑलराइट, we had discussed the pins of your SPI interface and we saw a basic interfacing diagram also. Directions क्या होने चाहिए, कौन सी pins किसके साथ attached होती है, right? And direction whether it's from master to slave or slave to master for all the 4 pins. अब communication process देख लेते हैं कि जब हमने ये तो देख लिया कि master is sending the data through MOSI, this pin, and your slave is sending the data from MISO pin, right? ये दो आपकी जो pins होती है. But actually data कैसे transfer हो रहा है? Now remember this is a form of serial communication. Serial communication का क्या मतलब है? 1 bit at a time. हमेशा आपको ध्यान रखना है, चाहे आपका जो USB प्रोटोकॉल है, UART प्रोटोकॉल है, all these are types of serial communication. Serial means 1 bit at a time. तो एक क्लॉक साइकिल पे एक ही बिट ट्रांसफर होगा. सो इफ यू हैव टू सेंड आउट 8 बिट्स और 10 बिट डेटा, जितना भी डेटा है जनरली 8 बिट एंड 10 बिट रहता है, देन यू विल हैव टू यूज 8 क्लॉक साइकिल्स और 10 क्लॉक साइकिल्स, राइट? जितना भी डेटा है उतनी आपको क्लॉक साइकिल्स चाहिए होंगी इन ऑर्डर टू ट्रांसमिट योर एंटायर डेटा. तो यहाँ पर आप देखो मैंने 8 बिट बना रखे हैं मास्टर के एंड स्लेव के, इफ यू कैन सी हियर. ठीक है, सो आई एम अज्यूमिंग मेरा 8 बिट डेटा है जो कि मास्टर टू स्लेव जा रहा है. एंड रिमेंबर दिस इज अ फुल ड्यूप्लेक्स कम्युनिकेशन एसपीआई. सो सेम टाइम पे स्लेव भी मास्टर को डेटा भेज रहा है. ठीक है, सो मास्टर इज सेंडिंग टू स्लेव एंड स्लेव इज आल्सो सेंडिंग सम डेटा टू मास्टर. That is why it is called a full duplex communication. हमने ये भी बात की थी कि slave to master can be optional, meaning अगर आपको slave से master data नहीं चाहिए कुछ, you can either disconnect this line or you can send some garbage value. लेकिन इसका जो buffer है ये activated रहता है. ठीक है, so let us see how your communication takes place when 1 byte of data is being transferred from master to slave, और कैसे सेम टाइम पे slave to master भी ट्रांसफर हो रहा है. ठीक है, सो आप लोगों ने अपने DLD में इन थर्ड सेमेस्टर यू मस्ट हैव स्टडीड शिफ्ट रजिस्टर्स, शिफ्ट रजिस्टर का कॉन्सेप्ट. सो बेसिक शिफ्ट रजिस्टर कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज हो रहा है. दिस इज योर 1 byte और 8 bit of master, दिस इज योर 1 byte 8 bit of slaves. M7 M0 ये आपकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, ये आपकी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है. सेम वे में मेरे पास यहाँ पर स्लेव की मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट एंड स्लेव की लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट. नाउ मास्टर टू स्लेव कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस थ्रू MOSI. ठीक है, आप देखो MOSI पिन के थ्रू, इस कनेक्शन के थ्रू आपका जो मास्टर होगा वो अपनी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट यहाँ भेजेगा. Now remember it is a shift register, यानी सारी वैल्यूज शिफ्ट होती रहेंगी. ठीक है, इसने यहाँ भेजा, सेम टाइम पे ये अपनी बिट यहाँ शिफ्ट करेगा, 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 एंड सो ऑन, राइट? एंड S7 क्या करेगा? इट विल सेंड इट्स बिट टू द LSB ऑफ योर मास्टर. ठीक है, थ्रू विच पिन? MISO पिन, master and slave. So this is how your communication takes place. पहली क्लॉक साइकिल में आपका ये पूरा राइट शिफ्टिंग चल रही है. ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा. This MSB of master goes to LSB of slave
and MSB of slave goes to LSB of master. अब नेक्स्ट क्लॉक साइकिल में आपका क्या होगा, अगेन शिफ्टिंग विल टेक प्लेस। तो अब जो यहाँ पे मास्टर का डेटा पहले आ चुका था वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। अब जो यहाँ पर ये 6th बिट से 7th बिट में आया था दैट विल गेट शिफ्टेड टू द LSB ऑफ स्लेव। सो इफ यू नोटिस द प्रोसेस हियर, 8 क्लॉक साइकिल्स में आपका एंटायर मास्टर यहाँ पे चला जाएगा, पूरा M0 टू M7 यहाँ पर आ जाएगा, M0 टू M7 एंड स्लेव का भी सेम रहेगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आफ्टर 8 क्लॉक साइकिल्स यहाँ पे M0 आ जाएगा, यहाँ पर M7। सेम वे में स्लेव का भी यही रहेगा, यहाँ पर S7 आ जाएगा MSB पे, यहाँ पर एंड यहाँ पर S0। So if you see, your entire byte of data from master has been transferred to slave, and in the same way entire byte of slave has been transferred to the master, but bit by bit, one bit at a time। एक bit इससे जा रही है, एक bit यहाँ से slave to master जा रही है। Alright, so this is how your SPI communication takes place। इसमें कोई as such frame format नहीं होता है जैसे हम लोग UART में करते हैं या भी I2C में करेंगे। Only your transmitter buffer is there and receiver buffer, या master buffer, slave buffer। बफर मतलब जो कि डेटा स्टोर कर रहा है, जो भी डेटा मुझे ट्रांसफर करना है, 8 बिट का डेटा हो गया, 8 बिट का डेटा। So इसमें आपकी बस शिफ्टिंग होती रहती है। So this is how your entire SPI communication takes place। अभी मैंने ये भी बात की थी, स्लेव से मास्टर ऑप्शनल है। तो ऑप्शनल का क्या मतलब है, या तो मैं इस लाइन को डिस्कनेक्ट करूं तो ये यहाँ से डेटा जाएगा ही नहीं, ऑब्वियसली ये भेजना चाहेगा, शिफ्ट तो करता रहेगा बट इट विल नॉट गो टू द मास्टर। और सेकंड ऑप्शन है, यहाँ पर आप कुछ भी गार्बेज डाल दो, गार्बेज या 0 वैल्यू डाल दो, सो जो भी मास्टर की वैल्यू होगी वो तो चली जाएगी आपकी स्लेव में, बट स्लेव विल सेंड आउट सम गार्बेज और रैंडम वैल्यू टू द मास्टर, जो कि मास्टर सेव नहीं करेगा। एक बार मास्टर ने जब डेटा यहाँ भेज दिया इस बफर में, इसको हम रिसीवर बफर कह सकते हैं या स्लेव बफर कह देते हैं, आई थिंक दैट विल बी बेटर, स्लेव बफर जस्ट, ठीक है। एंड इसको मैं मास्टर बफर कह देता हूँ, मास्टर बफर, ठीक है। सो मास्टर इज सेंडिंग सम प्रॉपर डेटा टू द स्लेव। अब जब ये सारे 8 बिट्स, पूरा बाइट 8 क्लॉक साइकिल्स के बाद स्लेव बफर में आ गया, देन यू कैन स्टोर दिस डेटा समवेयर, मे बी इन सम रजिस्टर, सम वेरिएबल, डिपेंडिंग ऑन व्हाटएवर प्रोग्रामिंग यू आर यूजिंग, ठीक है। तो ये प्रॉपर डेटा था जो कि स्लेव के बफर ने रिसीव किया एंड इट हैज बीन सेव्ड समवेयर, राइट। सेम वे में अगर स्लेव कुछ प्रॉपर डेटा भेज रहा है तो मास्टर बफर में जो आएगा उसको भी हम लोग कहीं सेव करवा देंगे। अगर कोई गार्बेज डेटा है जिसकी जरूरत नहीं है, देन दिस विल नॉट सेव एनीवेयर। तो हमेशा वो जैसे एक बाइट आपका ट्रांसफर हुआ, फिर जब नेक्स्ट बाइट आया वो ट्रांसफर हुआ, सो ऑल द बाइट्स विल बी सेव्ड हियर। बट अगर मैं यहाँ पर गार्बेज भेज रहा हूँ तो जो आता रहेगा वो सिंपली रिप्लेस करता रहेगा एंड इट इज नॉट बीइंग सेव्ड, right? So this is your SPI communication process, ठीक है। So no frames or fields here, only your shifting is taking place using shift registers, shift register concept, all right?